सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हसलर पॉडकास्ट। सो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में आया मोहम्मद बिलाल। सो ही इज़ बेसिकली आ प्रोडक्ट डिज़ाइनर Check the mic and make sure it sound right, boys. एंड आगे तो बिलाल ही इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। सो ओवर टू यू बिलाल। Great, great. Thanks for the warm intro, bro. I'm working as a product designer since the last 3 years, and I'm also doing graduation from Dehradun, bachelor's in design. Currently, I'm working with a startup called Logikits, and previously I got some I was lucky to work with some good companies like Nudge.me, and yeah. सो मतलब जो आपने वो शेयर करा था ना अपना नोशन ही था ना वो। Right, नोशन का था, तो उसमें मैंने देखा आपने इंटर्नशिप्स बहुत करी हैं स्टार्टिंग में। हाँ. तो अभी भी इंटर्नशिप कर रहे हो या मतलब अभी कोई है फुल टाइम जॉब? So अभी it's more like an intern only. So since मैं भी graduation भी parallelly कर रहा हूँ साथ में, हाँ. so I'm not planning to go full time करेंगे. So I'm just exploring as much as I can. So once I get my graduation done, उसके बाद I'll go for a full time. ओके ओके, सही है सही है। सो मतलब बेसिकली प्रोडक्ट डिज़ाइनर क्या करता है? मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब शॉर्ट में अगर चाहो तो शॉर्ट में, अगर लॉन्ग में। Okay, so because I'll be very honest, like I might not be the most experienced person, but I might be wrong places. Okay, so this is only based on my experiences, what I feel. So product design is more like, first of all, we have two kinds of product, like which I feel more are like physical products, like industrial product can be a pencil, like sharpener as well, and secondly are digital products. So product design, we design product to enhance the experience of user. That is one of the most important point. And design as well, using design principle. And yeah. ठीक है। I hope that answers your question. मतलब हाँ, क्योंकि इतना देखो deep नहीं जाना, क्योंकि it has a way too long, मतलब बहुत deep topic disturb किया हमने. हाँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों को इशू होता है ना कि ऊपर से हर चीज़ अच्छी लगती है, मतलब जब डेप्थ में पता चलती है तो वो अलग ही चीज़ होती है। ऊपर से ओवरव्यू से अलग चीज़ होती है, तो वो अच्छा। प्रोडक्ट मतलब UI UX का क्या पार्ट रहता है प्रोडक्ट डिज़ाइन में? UI UX is a part of product design. मतलब if for example we have a product, right? Like even this Google Meet, the platform which we are using, it itself it is also a product, right? Now coming on to UI, is user interface and the user experience. So it's a part of this particular product. So it comes under product design. Okay. मतलब UI UX प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंडर आता है, मतलब दोनों में कोई Yeah, ऐसा it's डिफरेंस a नहीं part है? of product design, right? ठीक Product है। design more of a wider view, हाँ, which covers all these aspects. ओके। सो यू आर मोर लाइक अ डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइनर। Right. सो एक और चीज़, मतलब व्हाट आर द मतलब मेन रोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर? लाइक यू हैव डन सेवरल इंटर्नशिप, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ आप थोड़ा। Okay. So as a product designer, so I won't be specifically going to as a product design. हाँ. First of all, as a designer, like you itself know that, mm, basic design principle always, right? And as a product design, if I talk about digital products, so we need to make sure what products we are building. So can we किसी एक specific topic में deep जा सकते हैं क्या? हाँ. I feel like there are too many points to cover. हाँ, वो कोई बात नहीं, हम्म, स्पेसिफिक अगर हाँ. टॉपिक पे जाना तो वो भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। Okay. I just skipped the question. Can you please repeat? मतलब मैं ये मेरे को पूछ रहा था कि व्हाट आर द मेन की रोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर इन एन कंपनी, लाइक एज यू हैव डन सेवरल इंटर्नशिप्स, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा था। Okay, so
it's more like brainstorming, wireframing, right? Also, communicating with stakeholders, with team members, like how do you communicate your designs, right? And the major is solving the design problems. Like how do you solve them? The creative methods as well, right? And secondly, most important is how do you communicate your designs? Because there are many designers who do like, but the way you represent your work, the way you explain why you did what you did is really important. ठीक है. Yeah, that's also far I can think. Right? हाँ. सो डिजिटल प्रोडक्ट मतलब जो मेरे नॉलेज में है अराउंड ऐप होता है एक डिजिटल प्रोडक्ट, वेबसाइट होती है, और मतलब Right. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर की मतलब यूआई एज अ डिजिटल प्रोडक्ट हम ले सकते हैं सॉफ्टवेयर को भी. Sorry, I think तो मिक्स मैच हो रहा है सॉफ्टवेयर के साथ में. कैसे कह रहे हो आप? थोड़ा सॉफ्टवेयर define जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेब टूल होता है, मतलब एडमिन पैनल होता है जैसे किसी भी मतलब वेबसाइट का, तो वो भी एक तरीके से वेब टूल हुआ, तो वो भी मतलब उसमें आ गया ना डिजिटल प्रोडक्ट में. Yeah, it's also a product at the end, right? हाँ. सो मतलब मेनली डिजिटल प्रोडक्ट में ऐप, वेबसाइट और पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर हो, जैसे कोई कंपनी अपना नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है तो वो भी एज अ डिजिटल प्रोडक्ट हुआ. Like for example, we can take Google Analytics, right? हाँ, वो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है. हाँ. So the overall product is Google for sure, हाँ. but it's more like a part of that product. हाँ. तो Yeah. मतलब मेनली जो मतलब जो डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है वो यही सब मतलब इनकी यूआईज और एक्सपीरियंस डिज़ाइन करता है, मतलब विद द टीम. और बाकी डेवलपमेंट सेपरेट होता है. Yeah, it's development is totally like developers वगैरह handle करते हैं. हाँ, वो तो डेवलपर्स There का are people हैंडल. who does मतलब जो दोनों भी करते हैं, but primarily developers के अंदर वो roles lie करते हैं. ठीक है, ठीक है. तो चलो ये तो बेसिक मतलब चीज़ें हो गई, मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन यूआई यूएक्स. अब तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ कि मतलब अराउंड कितने ईयर्स हो गए? 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स. Yeah. ओके, सो उसका एक्सपीरियंस शेयर करो कि स्टार्ट कहाँ से करा तुमने और अब कहाँ पे हो. Okay, so in like first like मेरे को इतना clear नहीं था what exactly design is. I used to think like कि I'll go for architecture field. Then realized कि like what design is about. So I joined design college in Dehradun itself. So in the first year of college, I explored so many fields. Like in design, there are too many fields, right? Like we discussed product, there are graphics as well, interior as well, and many more. So first year, I explored the foundation, like explored everything, whatever I can do. Then धीरे-धीरे I started learning tools as well. Along with the college, I learned with like tried to polish my skills of sketching, which is really important design. Then I started with basic like graphic design only. I started making posters, right? Posters, social media posts, and then धीरे-धीरे when I got hands into tools, मेरे को चीजों के बारे में पता चलने लग गया. Then I started making screens. So getting into UI specifically, तो उसके लिए first मैंने क्या किया कि पहले चीजों को I tried to copy things, like how other people are solving the same problem, right? तो उनसे मैंने चीजें सीखी कैसे होती हैं. फिर I tried to reach out to people. Then I got the first internship at Nudge.me. So वहाँ पे I worked as a graphic designer only. So first मैंने उनका social media के लिए work किया थोड़ा. Then for UI as well. So धीरे-धीरे like there were different milestones. Even so अभी ऐसा है कि मतलब I feel like I'm still learning. मतलब since I'm the third year of college, and talking about the knowledge that I got from the college, so honestly saying मतलब it's totally self-taught. Well, college just for name. It just like I say foundation was really good to build the basics, right? Then जो भी मैंने learn किया it's all self-taught. Then once that was done with the Nudge.me, then उसके बाद tried to explore more. फिर मैंने कुछ companies का intern करी.
companies like Membrio, and I recently interned with Sinotech as well. And now I'm interning with Logic Edge. ठीक है सो ये तो इंटर्नशिप किया। जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने बोला कि सॉफ्टवेयर, सो मेनली डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर को अगर एक्सक्लूड कर दें हम, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन यही आएंगे, और बाकी तो वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स में। सो यूआई डिज़ाइन के लिए, मतलब यूआई यूएक्स के लिए कोई हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स एक्सेप्ट एडोबी एक्सडी? एडोबी एक्सडी विंडोज़ में मैं भी यूज़ करता हूँ। हाँ So for UI, mostly people use Figma and XD, like you said. So at 100% consider Figma from my end. And for prototyping, like there are framers, there are more tools as well. But at the end, tools are always secondary part. It's all about like how you think, how do you solve that particular design problem. But answer to your question is like Figma is the primary tool which most of the people use in the UI world. सो द इशू विद फिग्मा और स्केचेस वो मैक के लिए ही है, बस विंडोज़ के लिए No, अवेलेबल है? Figma is for Windows as well, bro. So- And it's free. ओके, सो फिग्मा वेब पे चलता है, मतलब ऐसा इंस्टॉल नहीं होता सिस्टम में? हाँ No, we have both. आप वेब पे भी यूज कर सकते हो और इसका ऐप भी है. ठीक है। But जो sketch है मतलब, तो that is only for Mac. ठीक है। हाँ, मैं ट्राई करूँगा फिग्मा अब, क्योंकि एडोबी एक्सडी जब से लॉन्च हुआ तो एडोबी एक्सडी पे ही मतलब वर्क कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से ही। स्केच फिग्मा मतलब मुझे ये था कि मैक पे ही अवेलेबल है, तो वो इशू था एक। No, bro. हाँ। You must try Figma. हाँ, फिग्मा ट्राई करूँगा। सो जैसे मतलब एक और चीज़ है कि सेपरेट टूल्स भी और आते हैं, जैसे आपने बताया फ्रेमर आता है और एक आध दो और आते हैं, इनविजन आता है, InVision. हाँ, तो इन सब का यूज़ क्या है बेसिकली? Okay. So one thing is like we design a still screen. ठीक है? As a home page, like we take this screen only, we have to photograph in certain icons on the down bar, right? हाँ So to show this to other people or to add functionality on it, right? From functionality standpoint. So we need to prototype these screens to jump on one to the another. Like if we tap on the end screen or the share screen, so what happens? But if overlay, the overlay will open, right? If I present on the present now button. So this functionality, these tools help us to achieve these functionalities. Prototyping. फ्रेमर और इनविजन टाइप्स टूल। Right. We can do this on Figma as well, but for more complex prototyping, we go for those tools. ओके, सो लेकिन बेसिक प्रोटोटाइपिंग एक्सडी में भी हो जाती है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटोटाइपिंग मतलब किस टाइप की होती है? Complex मतलब जिसकी जो interactions हो गए हमारे, कि हम अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी एक्शंस लेंगे तो कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में मॉर्फ करेगी या जंप करेगी, या वो कैसे एग्जिस्टिंग पेरेंट स्क्रीन के साथ क्या उसका बिहेवियर होगा जब यूजर कोई सर्टेन एक्शन लेगा, राइट? सो मुझे मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं स्टार्टअप में कर रहा हूँ, तो मैं एक इशू फेस करता हूँ, क्योंकि जैसे जो हम पर्टिकुलर एनिमेशंस बना सकते हैं स्क्रीन्स में, हमारे पास तो फ्रीडम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं स्क्रीन के साथ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो इशू डेवलपमेंट में ये आता है कि कुछ चीज़ें वो डेवलपमेंट में ऐड नहीं कर पाते, डेवलपर्स वो इशू फेस करते हैं कि ये एनिमेशन नहीं डाल सकते हम, ये नहीं कर सकते, तो वो मतलब कैसे कंपनीज में कैसे वो होता है, कोऑपरेट करते हैं डेवलपर्स? ओके, सो अभी जो आप एनिमेशंस बनाते हो तो डेवलपर्स को कौन सी फाइल फॉरवर्ड करते हो, मतलब कौन से फॉर्मेट्स में? फॉर्मेट मतलब अभी तो जो XD का लिंक होता है वो तो पहले उसके लिए जाता है रिव्यू के लिए कि हाँ इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, अगर डेवलपर्स भी रिव्यू करते हैं वो, और बाकी लोग जितने भी कंपनी में, वो एक बार एक काइंड ऑफ अ यूज़र टेस्टिंग हो जाती है कि अगर जहाँ पे इशू है तो वो हो जाता है। उसके बाद डेवलपर्स को आइकन्स ही चाहिए होते हैं, बाकी कोई एनिमेशन के लिए ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन वो एनिमेशन के लिए कोई फाइल एग्जैक्टली मुझसे तो नहीं मांगते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल ना, मतलब जैसे आपने कोई एनिमेशन बनाई, राइट? हाँ, सो उसे डेवलपर्स यूआई में कनेक्ट करेंगे, तो व्हाट हैपेंस इज दीस डे वी यूज लॉटी एनिमेशन, हाँ, लॉटी फाइल्स, राइट?
हाँ So I get your point कि you share the prototype link, है ना, but that is okay for like what you have designed and what to share like how exactly the screens work, हाँ है ना. लेकिन जो animations design करी आपने तो वो forward करने के लिए we use Lottie animations. तो Lottie animations ज़्यादा easy होती हैं to actually put on the actual design with codes. So those are like codes only. जेसन फाइल सप्तऋषि की Jason, वीडियो Jason, मैंने देखी थी. right. He's king on that topic. हाँ Uh, सो वो एनिमेशन तो वो आफ्टर इफेक्ट्स के एक्सटेंशन था ना लॉटी का. right. तो फिर वो मतलब पर्टिकुलर एनिमेशन पहले उसमें हमें डिज़ाइन करके फिर वो कोड में कन्वर्ट होगा, सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में ही होगी वो चीज़. Yeah, so we can make the animations on After Effects. फिर बाद में उसको Lottie में convert कर सकते हैं. So we have to make a particular icon. For example, like in the Saptarishi video, he shows like the heart one. So like वो एनिमेशन मतलब पर्टिकुलरली हमें सेपरेट वो आइकन ले आके पूरा एनिमेट करना पड़ेगा, फिर वो कोड में जेसन फाइल में कन्वर्ट होगा, फिर वो डेवलपर्स को जाएगा. ठीक So है. first, for example, we make the vector मतलब हाँ पूरा animations वगैरह basic, then we go on to Lottie JSON's file convert ठीक है ठीक from है. After Effects. हाँ ठीक है. तो ये तो मेरा पर्सनली क्वेश्चन था. ठीक है. सो अब एक और मतलब मेरा क्वेश्चन नोट कर रखा था ये कि मतलब UI UX इंडस्ट्री या प्रोडक्ट डिज़ाइन इंडस्ट्री, मतलब यू हैव मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. मैं तो स्टार्टअप में ही कर रहा हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मैंने जॉब स्विच नहीं करी. मैं स्टार्टिंग से स्टार्टअप में ही हूँ. मोर देन 2.5 साल से मुझे ऊपर हो गया है एक ही स्टार्टअप में जॉब करते हुए, क्योंकि स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, इसी वजह से मैंने ज़्यादा स्विच नहीं करी. यू हैव स्विच अ लॉट. मैंने देखा 3-4 मतलब इंटर्नशिप में स्विच कर सकते हैं, मतलब फुल टाइम जॉब में नहीं कर सकते इतने जल्दी. इंटर्नशिप में तो मतलब इंटर्नशिप की इंडस्ट्री मतलब किस टाइप की है, मतलब कंपनीज टू कंपनीज. Okay, so industry जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ या कैसी हाँ होती है UI मतलब? UX की इंटर्नशिप इंडस्ट्री. Okay, so industry मतलब like I said starting में हमने डिस्कस किया product, right? हाँ प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स में जैसे भी इंडस्ट्री होगी, फॉर एग्जांपल वी हैव बायजूस, तो एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट, एंड देन वी हैव गूगल. इफ नॉट टेक गूगल, लेट्स टेक गेम्स एज वेल, है ना. तो गेम्स की अलग डिफरेंट हो गई. तो ऐसी चीजें कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट हो जाती हैं. जस्ट लाइक वी हैव द ऑप्शन ऑन अ प्ले स्टोर कैटेगरी वाइज, राइट, हाँ लाइफस्टाइल एंड टूल्स, गेम्स, कम्युनिकेशन एंड मोर. ठीक है. तो मतलब इंटर्न को एज अ कंपनी में वैल्यू किस टाइप की मिलती है, मतलब ही लाइक हाउ एन इंटर्नशिप इज ट्रीटेड लाइक इन अ कंपनी. ओके, सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मतलब एज एन इंटर्न, मतलब आप ये पूछो कि इंटर्न को कैसी वैल्यूज और उसको हाँ कैसे ट्रीट करते हैं. हाँ ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन लाइक कि कंपनी का कल्चर कैसा है, राइट, एंड हु आर योर मेंटर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं कंपनी में. तो दोज मैटर्स अ लॉट, like to whom you're reporting your work. Those are the main mentors and the leaders. And the environment is mostly nice if you're lucky. Sometimes we get a हाँ मतलब कभी कभी we get like headache and load होता है चीज़ों पे, but it's a part of learning only. ठीक है. मतलब वो फिर हैंडल करना, प्रेशर में वर्क करना, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं. Like that's how we learn. मतलब हाँ. वही चीज़ें जब तो मतलब so there are like negative भी और positive भी, हाँ both way. हाँ. तो अच्छा एक चीज़ बताओ, 3 मुझे पॉजिटिव बताओ, 3 मुझे नेगेटिव बताओ एज एन इंटर्न. मतलब वैल्यू किसी कंपनी में 3 अच्छे पॉइंट और 3 बुरे पॉइंट्स. किसी कंपनी में मतलब पर्टिकुलर कोई भी तो अपने नहीं जा एक्सपीरियंस सकते से, मतलब. अपने एक्सपीरियंस से बता दो कि 3 अच्छे तुम्हारे साथ जो हुए हैं और 3 जो बुरे हुए हैं. मतलब कंपनी का कोई नाम मत लेना, बस अपने एक्सपीरियंस शेयर करो. Okay, so starting with a good one. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज लकी कि मेरे को बेटर गुड मेंटर्स मिले. हाँ ठीक है. नेक्स्ट दे वर सपोर्टिंग एज वेल, नॉट एज अ क्लाइंट ओनली. हाँ ठीक है. दे हेल्प मी लर्न लाइक जो मेरी वीक स्किल्स थी. ठीक है. सो दे हेल्प मी गेन दैट एज वेल पैरेलली कि आप ये चीजें सही करो अपनी, दिस आर योर वीक पॉइंट. थर्ड वाज like the feedback and the design that I used to make. So they were always like
friendly with me. They were always used to guide me how I used to मतलब हमेशा मेरे को करेक्ट वे में करेक्ट करते थे. And yeah. Negative was somewhere about the time. Like sometime I used to work a late, मतलब बहुत देर टाइम तक. But then I realized कि as a designer it's necessary कि हम मतलब अपना टाइम और वैल्यू को प्रॉपर मेंटेन करें. We should not allow the people to misuse us like more than the hours that we are supposed to work. हाँ. Second was finding the right good clients. मतलब there was clients as well, मतलब they were not good. They don't value designs as well. What they matters is कि बढ़िया सा aesthetics कुछ बना के दे दो. That's all they need. They don't even value design. हाँ, मतलब एक्सपीरियंस की So वैल्यू नहीं है. वो हाँ, मतलब the worst part is कि डिजाइन की वैल्यू है at the end, right? Whom I'm making mean. तो वो चीज. Third can be अभी मीन तो ही आ रहे हैं वैसे मेरे को. हाँ, तो कोई बात नहीं, दो भी ठीक है. Cool. सो मतलब वो डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनी. ये जो तुमने बताया 3 अच्छे 3 बुरे पॉइंट्स, तो ये कंपनी टू कंपनी और तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि तुम्हें अच्छी मिलते हैं. मतलब किसी भी कंपनी का कैसा एटमॉस्फेयर है और किसी कंपनी का, तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है वो चीज़ें. ठीक है. Right. तो एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि ये सब चीज़ें कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, लेकिन कुछ कुछ जैसे ये होता है कि कोई मेंटोर्स हैं कि जैसे तुमने बोला मिसयूज़ का, तो मिसयूज़ किस टाइप में करते हैं कि मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो मिसयूज़ किस टाइप में? मतलब इट कैन बी मतलब टाइम भी हो सकता है. ठीक है. कैन बी वर्क एज वेल as well as the deadline. मतलब the amount of bandwidth you want to do certain amount of project, right? But उनको नहीं समझ they don't understand like how much time does it need. ठीक है. For example, if we make a screen, a simple this screen only, Google Meet once again. So sometimes they used to feel like it just taken just quick, just we press the button and just ready. But it's not like that. Takes a deep understanding as well as a good amount of hard work as well. सो एक चीज़ और कि अगर जैसे तुम्हारा कोई अगर कोई इंटर्न है तो उसका कोई डेली टारगेट होता था या एक पर्टिकुलर मतलब एक मंथ की डेडलाइन होती थी कि इस मंथ के एंड तक या इस वीक के एंड तक ये चीज़ कंप्लीट करनी है? Okay, so it depends on कि what other projects we are working on, कि किस projects क्या हैं, and based on projects की क्या फिर deadlines हैं, कि वो कब तक वो ready होना है, legit उनकी क्या timeline होनी चाहिए. Sometimes mostly जो guides करते हैं mentors या जो senior designers होते हैं, maybe अगर if you're lucky to intern with some good designers, so they help you up with that कि कितना इसमें time वो चीज़ें चाहिए होती हैं. सो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि कोई जैसे पर्टिकुलर डेडलाइन है और तुमने वो चीज़ फॉर एग्जाम्पल वो डेडलाइन तो वो अलग केस हो गया, मैं डे का बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ टास्क फॉर द डे, मतलब इस डे के एंड तक तुम्हें फॉर एग्जांपल 4 UI पेजेस बनाने किसी भी मतलब प्रोडक्ट के, वो कोई भी हो सकता है, और तुमने वो विद इन हाफ डे कंप्लीट कर दिया, तो उस केस में मतलब क्या होता है फिर? Okay, so उस केस में it's more like first of all it's good. मतलब it's first of all the work should be good. अगर वो जल्दी खत्म हो गया तो next is it's more like काम हो गया, so it depends on people to people what other thing they have to do. They can also मतलब वो शेयर भी कर सकते हैं अपने सीनियर से जिनको भी they are responding कि hey I'm done with this, why don't we get on to another project or whatever next is. So this is more like कि चीजें हो गई हैं, what's to do next. So it's based on that particular time or the person. ठीक है, मतलब दूसरा कोई वर्क मिल जाएगा अगर वो टारगेट मतलब डे एज अ डे का टास्क जो था वो मतलब जल्दी कंप्लीट हो गया. हाँ, तो it's good ना, मतलब टाइम से पहले हो गया है, so it's more like we're already ready. ठीक है चलो ये ठीक है.
अब ये क्वेश्चन तो मतलब सबके दिमाग में रहता है, हर दूसरा कोई भी जो नया मतलब स्टार्ट करता है स्टूडेंट भी या कोई भी इस फील्ड में नया स्टार्ट करता है, सबसे पहले यही पूछता है कि हाउ मच वैल्यू, मतलब वैल्यू इन द सेंस लाइक कैसे बोलूँ मैं ऐसे डायरेक्टली बोलना वैसे सही नहीं, क्योंकि कंपनीज में यही होता है। मतलब मैं अपने यूज़र्स को भी यही बता रहा हूँ कि कंपनीज में कभी भी सैलरीज, कोई भी मतलब पैकेजेस, कोई भी चीज़ें किसी भी एम्प्लॉय के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए और ना होती हैं। सो ये करनी भी नहीं चाहिए, ना होती हैं कभी भी। बस एचआर और तुम्हारे तक वो रहती हैं, बस इससे ज़्यादा किसी के साथ वैसे शेयर भी नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें मतलब जो न्यू डिज़ाइनर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये तुमसे पूछना चाहूँगा कि डोंट लाइक मेंशन अ एग्जैक्ट वैल्यू, फिर भी लाइक कैन यू टेल लाइक व्हाट आर राउंड ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल अ न्यू पर्सन स्टार्टिंग इन दिस फील्ड, so how much he can like generate? Okay, so as a fresher, as an average हाँ UI UX designer in India mostly, so he can easily get 5 to 10 lakh of package, or more than 10 lakh as well in India. Minimum 5 lakhs if it's good, I believe, per year. as a intern or a full time employee? He can do both, I believe. so intern में फिर It depends on the user. हाँ, और कंपनीज टू कंपनीज वो चीज़ें वेरी करती हैं। Right. ठीक है, तो मतलब यू आर सेइंग लाइक एज एन इंटर्न एंड अ फ्रेशर यू कैन लाइक मेक अप टू लाइक मिनिमम 5 LPA, okay? I'm not talking particularly about me, but Yeah, it's more than an average. yeah, I'm also talking about like the More like what I have seen in the industry so far. okay, but मतलब मोस्ट ऑफ द लाइक पीपल लाइक वो आई मतलब मैंने उन लोगों से बात करी है तो जी, वो जी। उनका अराउंड 1.5 3 इतना ही जाता है। एज ए इंटर्न तो और भी कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इफ़ यू लुक लाइक इन सम लाइक कंपनीज दिस टाइप एंड लाइक वेरी वेरी लेस, लाइक हाउ लाइक हम्म। ऐसा क्यों होता है मतलब यूजुअली? सो इसमें भी मतलब इट्स वेरी कि एट व्हाट प्लेस हम कहाँ इंटर्न कर रहे हैं। सेकेंडली स्टाइपेंड इज ऑलवेज आई बिलीव सेकेंड वर्ड इम्पोर्टेंट है कि हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं हाँ जिनको हम काम कर रहे हैं, राइट? सो ऑलवेज जो हमारी वैल्यू है उसी से प्राइस भी डिफाइन हो जाता है चीज़ों को। सो इफ यू हैव अ गुड वैल्यू, सो वी हैव obviously will get some good company or good place to work. And if we have a good place to work, for sure we'll get a good compensation as well. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी अंडर वैल्यू पीपल, लाइक जैसे कोई नया फ्रेशर है उसे पता भी होता नहीं है, है हाँ। कि मेरी वैल्यू कितनी है और किसी कंपनी में जा रहा है तो वो उसे अंडर वैल्यू करते हैं। तो उस चीज़ से कैसे मतलब कॉम्पनसेट करे कोई भी मतलब नया फ्रेशर? Okay, so like मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो what I used to do is I used to guide them कि hey like this is the value I can provide and this is how much you can generate from the work that I'll do. ठीक है? Maybe their business but जो मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँगा उनको क्या प्रॉफिट्स होगा, उनका अगर 1 लाख का प्रॉफिट होगा, सो इट्स लेजिट टू इन्वेस्ट 10,000 और 5,000 मिनिमम, मतलब उससे कम, मतलब एज अ डिजाइनर या द वर्क आई एम प्रोवाइडिंग। सो इट्स बेटर यू शो देम द वाइडर व्यू कि वर्ड से आउटकम। सो इफ मतलब अगर हम काम करेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, राइट? सो दैट्स आई बिलीव अ प्लस पॉइंट टू कन्विंस पीपल। ठीक है, ठीक है। तो बाकी जो जो व्यूअर सुन रहे हैं तो वो ये चीज़ें नोट कर लो ताकि अप्लाई कर सको बाद में अगर एज अ फ्रेशर यू आर स्टार्टिंग लाइक इन दिस फील्ड। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि कंपनीज टू कंपनीज वर्किंग अलग चीज़ है और फ्रीलांसिंग बिल्कुल एक अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। कॉन्टैक्ट्स बनाने में सालों लग जाते हैं फ्रीलांसिंग में। सो उस पर तुम्हारा क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रीलांसिंग में? मतलब फ्रीलांसिंग करने में हाँ मेरे थॉट्स। हाँ ओके, सो इट्स गुड, मतलब इट्स वेरी टू पीपल कि मैंने डिजाइनर जो फ्रीलांसिंग करते हैं, बट अभी आई एम मतलब आई बिलीव कि इट्स गुड टू गेट एन इंटर्न और टू वर्क एज अ फुल टाइम एट समवेयर जहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हो, यू हैव गुड मेंटर्स, हाँ ठीक है? एज अ फिजिकल स्पेस है तो वेल एंड गुड, बट
ड्यू टू दिस कोविड थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, सो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो फ्रीलांसिंग इज मोर लाइक कि you work for a project and it's done, and you get paid and it's over. But as an intern or as a full time when you work for some company or somewhere, so it's more like a long term learnings, I believe. ठीक है। और फ्रीलांसिंग में फर्स्ट थिंग यू मतलब ये मतलब sorry to cut in between. मतलब फ्रीलांसिंग आई डोंट हैव कि नहीं ये गलत है या बुरा है, इसको मेरे थॉट्स नहीं। It's just like I prefer the interning or full time. दैट्स So योर ओपिनियन या। सो मैं मतलब मैं ये बोल रहा था कि फ्रीलांसिंग में मतलब मेन जो चीज़ वेरी करती है वो है कॉन्टैक्ट्स। इफ़ यू डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स और लाइक व्हाट डू यू से क्लाइंट्स, अगर क्लाइंट्स ही नहीं है तो मतलब फ्रीलांसिंग का कोई लॉजिक नहीं बनता। और फ्रीलांसिंग में अगर कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है तो यू कैन नॉट अर्न। नहीं, I believe कि if you have a good work, या then people come to you by themselves. सो यू हैव तो उसमें कोई हाँ टू मेक योर मार्केट वैल्यू। या कि आपके अपीयरेंस क्या है मार्केट में, मार्केट और दी ऑनलाइन अपीयरेंस या पोर्टफोलियो हाँ, यू हैव टू मेक और योर मे बी दिस हाँ या फिर जो साइड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो वो कैसे लोग तक रीच आउट हो रही हैं चीज़ें। ठीक है। सो मेरा इसी यही फ्रीलांसिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि कैन वी मेक कॉन्टैक्ट थ्रू लाइक इंटर्नशिप और नॉट। फॉर श्योर डेफिनेटली। मतलब फ्रीलांसिंग के लिए कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं ऐसे, मतलब हमारे बड़े मतलब कॉन्टैक्ट। इट्स नॉट जस्ट मतलब सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए नहीं, यू गेट कॉन्टैक्ट्स फॉर फुल टाइम जॉब एज वेल। हाँ कॉन्टैक्ट्स आर लाइक कॉन्टैक्ट्स बन रहे तो इट्स प्लस पॉइंट, इट कैन बी फॉर एनीथिंग, राइट। ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। अब एक और क्वेश्चन ये था। हाँ सो मतलब अभी इंडस्ट्री में UI UX इंडस्ट्री में बहुत मतलब ज़्यादा बूम आ रहा है, ज़्यादा लोग इसमें मतलब चाह रहे हैं कि हम इसमें इंडल्ज हों, कि हाँ देखें कि कैसे होता है। क्यों मेन पॉइंट जो आ रहा है कि वैल्यू, मतलब लोगों को यह है कि UI UX में आई कैन मेक मोर देन लाइक दिस फील्ड, मोर देन दिस फील्ड। सो इज इट ट्रू और नॉट लाइक। मतलब यू मीन कि लोग इन टर्म्स ऑफ मनी या हाँ कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी पीपल आर लाइक ट्राइंग टू लाइक एंटर इन दिस फील्ड लाइक। मतलब आई डोंट सजेस्ट कि पीपल शुड जंप जस्ट फॉर मनी, मतलब आई डू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, राइट। बट इफ वी लुक एट अदर फील्ड्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल्स को ही देख लें और लेट्स गो विद ग्राफिक डिजाइन और सम एल्स, तो इफ यू आर गुड एट समथिंग, बाय गुड आई मीन 100% ऑन द टॉप, सो यूल फॉर श्योर मतलब आपको बहुत अच्छा पे मिलेगा। सो द थिंग इज कि डू व्हाट मेक्स यू फील गुड एंड यू आर कंफर्टेबल विद, which excites you, and yeah, go for that. हाँ क्योंकि मतलब एज सच कोई ज़रूरी नहीं है, हर फील्ड में अपनी वैल्यू है, बनानी पड़ती है टाइम के Right. साथ। मतलब स्टार्टिंग में यू कैन नॉट लाइक अर्न लाइक इन लाइक करोड्स और समथिंग, यू हैव टू मेक योर ओन वैल्यू। टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ यू इंक्रीज योर वैल्यू टाइम लाइक डे बाय डे एंड लाइक अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, राइट। ठीक है। सो एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे इस UI UX इंडस्ट्री में अब थोड़े टाइम अभी स्टार्टिंग्स में मतलब अराउंड 1 year अगो there were no mentors like online mentors that like were the face of UI UX industry, right? They were like Saptarishi. Saptarishi was in Swiggy. Like when someone names of Swiggy, the first name that comes is Saptarishi, right? सो ये इशू है कि मतलब 1 साल पहले तक कोई भी मेंटोर्स ऐसा मतलब फ्रंट फेसिंग में नहीं था UI UX इंडस्ट्री के। अब लेकिन अब ये हो गया है कि जब भी UI UX इंडस्ट्री का नाम आता है, सो डू यू नो पुनीत चावला? Right. हाँ Yeah. पुनीत चावला, सप्तऋषि, एंड देयर वाज वन मोर लाइक अबनक्स Abhinav. yeah Abhinav. yeah he has a YouTube channel cause, so they are like now the face of like this UI UX industry. So like what are your opinions on this thing? Okay. So first of all, like you said कि 1 साल पहले मतलब इतने नहीं थे. हाँ So I believe there was people, right? The only difference was कि maybe for me, मेरे को लगता है कि
since I'm just getting started, I'm just exploring fields. So मेरे को अब चीज़ों का पता चल रहा है कि yeah, there were people there doing such thing, हाँ right? So I believe कि पहले भी चीज़ें थी according to what was going on in the industry, हाँ and having such people online, like especially the ones you mentioned, um, so it's good to see like what exactly is going on in the industry, है ना? To see people like the Vanshulya Saptarshi, Abhinav, and more, हाँ so right? or like earlier they were in the back foot, like they are playing in the back foot, they were like not that much open up. Now they are like in the front foot of this field, like now they are kind of a face of this industry, right? Yeah, so uh, I think इंडिया में चीज़ें अभी भी और इतनी सैचुरेट नहीं हुई हैं, हाँ so we guys are still exploring. So it's good to have such people on internet, and internet is the best way, मतलब चीज़ों को सीखने के लिए explore करने के लिए. हाँ सो ये थोड़ा मतलब जो क्वेश्चन है ये अगर तुम चाहो तो मैं बाद में कट कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो इस पे बस अपना ओपिनियन देना एज सच, मतलब कोई स्टेटमेंट मैं भी नहीं दूंगा, तुम भी मत देना क्योंकि बाद में फिर कोई इशू फेस ना करना. तो जैसे मतलब पुनीत चावला है, अभिनव है, सो दे आर लॉन्चिंग देयर कोर्स, लाइक यू हैव यू सीन लाइक पुनीत चावला हैज लॉन्च अ डिज़ाइन विंग्स एंड Abhinav has Right. yeah. So like do you think like they are like that much profitable for like as a fresher, like can I learn from that courses or not, like or should I go for self taught? I believe कि सबके अलग अलग पाथ होते हैं, right? Someone's कोई self taught होता है. So the thing is like if you get a chance to get those things, it's well and good, no problem. But we can learn by ourselves as well. ठीक है. The only thing is कि सबके अलग अलग पाथ होते हैं. It's on us कि what path do we take, or what are मतलब क्या क्या चीज़ हमारे लिए available है उस particular time पे. That's what I think. ठीक है. सो माई सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट या ऑलमोस्ट फिर एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को. सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि एनी सजेशन फॉर लाइक न्यू फ्रेशर्स लाइक स्टूडेंट्स और लाइक डिज़ाइनर if they want to like do in this field, like in product design, UI UX design, so any suggestion for them? Okay. So just like you said, the fresher, so I believe कि I'm still also learning. मतलब I will not consider myself मतलब way too experienced. Yeah, like everyone like is learning, Very honest. but like you are not right now, you are not a fresher, like you can like call yourself as an experienced designer, like 3 years is not like small time. Yeah, but I believe numbers doesn't matter. Yeah. It's more like the quality of projects you have worked on. That's what matters. Right. Okay, so getting back into your question, like what can be like tips कह सकते हैं हाँ, मतलब. tips या suggestions. So I believe to always stay updated with what's going on in the industry, right? See what other people are doing online. Just like you suggested some of them, Yeah. online mentors, right? So it's good to see like what they're sharing, what people are doing on the industry. Also make connections, talk to people, right? Always try to understand users from their point of view, and keep exploring. And yeah, because जो हमारा field है, I believe like it's a constant मतलब learning all the time. So we need to learn each day and explore each day. It's not like I read this book and I'm done. I know everything. ऐसा नहीं होता. हाँ. सो बस एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर तुम्हें हमारे व्यूअर्स मतलब कुछ कहना है तो यू कैन से लाइक. Okay. Yeah. So since this is my first time मतलब my channel पे. So who are your viewers? Mostly they are designers only, I guess, right? Yeah, most of like the people are designers, and like for the like for this particular like podcast thing, like we all are designers. Okay. Yeah. So first of all, like I'm just a learner. Yeah. I'm just exploring. We are just having conversation just to explore things and learn from each other, Yes. right?
And yeah, if you have any questions, or like if you think we talked about something, like anything that was wrong, or you want to think that would have been answered in a better way, yeah, so please comment your reviews, or you can add the social links. हाँ My social बाकी links are in the description, so they can connect me. ओके ओके सो मोहम्मद बिलाल का मतलब इंस्टाग्राम और अदर सोशल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क, लाइक यू कैन डीएम हिम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, और लाइक इफ़ यू वांट टू लाइक सजेस्ट एनीथिंग यू कैन कमेंट डाउन बिलो लाइक इन द कमेंट्स. बाकी इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं. अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. बाय बाय.